اگلے 2-3 سال تک اس طرح چلے گا اور پاکستان کیونکہ کافی کرنسی ڈپریشیٹ کر گئی ہے، پاکستان کے لیے چیلنجز کافی زیادہ ہیں. کیونکہ جو لاس ہے اگر ایک اسٹیمیٹ سروے کے مطابق آلموسٹ 1/3 ہماری کراب جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے. تاہم طویل مدت میں الیکٹرک موٹر سائیکلیں پیٹرول موٹر سائیکلوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ایندھن کی لاگت کو بچا سکتی ہیں. محترم ناظرین السلام علیکم. پروگرام پاک چائنا ایکسپریس میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نسرین. اعداد و شمار کے مطابق کنزیومر پرائس انڈیکس یعنی CPI کے ذریعے پیمائش کیا جانے والا سالانہ افراد زر دسمبر میں 24.5% ریکارڈ کیا گیا. کن اشیاء کی قیمت میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا اور اتنی بلند مہنگائی کی کیا وجوہات ہیں؟ دسمبر میں CPI کے اضافے نے لوگوں کی زندگیوں کو کیسے متاثر کیا ہے؟ آئیے ایک ساتھ دیکھتے ہیں رپورٹ. ہمارے صحافیوں نے لاہور اور کراچی کے بازاروں اور دکانوں کا دورہ کیا اور قیمتوں میں حالیہ اضافے سے بیچنے والوں اور خریداروں کی مشکلات کا مشاہدہ کیا. اتنے عرصے سے کام کرتے ہوئے اتنا اتار چڑھاؤ قیمتوں کا جو ہے نا کبھی دیکھنے میں نہیں آیا. اب تو یہ کہ صبح کچھ ہے قیمت، شام کو کچھ ہے. جو چیز ہم لے رہے ہوتے ہیں اس کا پتہ ہے کہ یہ اتنے کی ہے، جب اس کو سیل کر دیا اگلے دن کا پتہ نہیں کہ وہ قیمت کیا ہے، اس کی کتنے کا آنا ہے، کتنے کا اس کو سیل کرنا کیا ہے. تو اس حساب سے ہم تو خود بہت پریشان ہیں. نہ کوئی بہت زیادہ مہنگی ہو گئی، آٹا لوگ کی در رولتے پھرتے ہیں، یعنی کہ وہ بھی مہنگا ہے، چول ہر چیز تو مہنگی، سستی کوئی شے نہیں. بس دنیا کے وقت ہی سستا رہ گیا. مہنگائی تو اوبیسلی بڑھ چکی ہے. اس میں جو 2-3 چیزیں آ جاتی ہیں کہ پہلی وہی ہے ان امپلائمنٹ. طرح آپ کو پتہ ہی ہوگا، آپ اوبیسلی نیٹ کے اوپر دیکھتے ہیں یا اور چیز اویئرنیس ہے انسان کو کہ فیصل آباد میں انڈسٹری بند ہو گئی ہے، اور جتنی بھی انڈسٹری تھی، جتنی بھی صنعتیں تھیں، ساری چیزیں بند ہوتی پچھلے 7-8 مہینوں کے اندر بالکل جو ہے یہ آلموسٹ کاروبار اور بزنسز بند ہو چکے ہیں. یہ اضافہ جو ہے وہ حالیہ دنوں میں ہوا ہے. چاول، دالیں، آٹا، چینی اور جو تیل، گھی وغیرہ ان پہ جو ہے وہ یہ اضافہ ہوا ہے. اس وقت تو روز بروز بڑھ رہی ہیں، کمی کا تو کوئی وہ نہیں ہے. ہم تو آج کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 2500 روپے میں 20 کلو کا 20 kg کا آٹا 25 kg میں 2500 روپے کے میں مل رہا ہے. تو 2 دن بعد پتہ چلتا ہے 2600، اگلے دن پتہ چلتا ہے 2700. یہ تو مسلسل تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. ناظرین، اس موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شان سعید صاحب، جو کہ چیف اکانومسٹ ایٹ جوائی IQI. جی جناب، آپ ذرا بتائیے کہ دسمبر میں ملک میں CPI کی جو اضافہ ہے اتنی بلند کیوں ہے؟ جو اتنا زیادہ پاکستان میں افراط زر ہے، انفلیشن ہے، اس کی 3 وجوہات ہیں. ایک تو شارٹیجز پوری دنیا میں جو ہو رہی ہیں، دوسرا ڈیمانڈ بڑی سٹرونگ ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان جو ہے کنزمپشن اورینٹڈ سوسائٹی ہے، تو یہاں پہ جو کنزمپشن پیٹرنز ہے وہ بڑی سٹرونگ ہے. تیسرا جو ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے مہنگائی ہے وہ ہے کہ آپ کی کرنسی جو ہے وہ ڈپریشیٹ کر گئی ہے. جب کرنسی جو ہے وہ اپنی ویلیو لوز کر جاتی ہے تو اس سے جو ہے ملک میں افراط زر آ جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے پاکستان میں انفلیشن زیادہ ہے. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں، ہم نے آلریڈی اپنے انویسٹرز کو بتا دیا تھا کہ پوری دنیا میں جو انفلیشن ہے، افراط زر ہے، تو یہ میرا خیال ہے اگلے 2-3 سال تک اس طرح چلے گا اور پاکستان کیونکہ کافی کرنسی ڈپریشیٹ کر گئی ہے، پاکستان کے لیے چیلنجز کافی زیادہ ہیں. جناب، آپ کی معلومات کے مطابق ملک کے کن شعبوں میں یا کن اشیاء میں CPI کی سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے اور کیوں؟ اس وقت جو سب سے زیادہ مہنگائی ہے وہ ہے کھانے پینے کی چیزوں میں، اور آپ کو پتہ ہے فوڈ سیکیورٹی جو ہے ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ بن گیا ہے. اور پاکستان میں اس وقت زیادہ جو لوگ پریشان ہیں وہ اسی وجہ سے، کیونکہ جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں جیسے دال، چینی، آٹا، یہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کیونکہ ہمارے یہاں ایلوکیشن ریسورسز اتنا نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کیونکہ گلوبلی ساری چیزوں کی جو بیسک اشیاء ہیں کھانے پینے کی، ان میں اضافہ ہو رہا ہے پوسٹ کووڈ.
اور جو مختلف کانفلکٹس چل رہے ہیں ان کی وجہ سے بھی سپلائی چین میں ہکپس آ رہے ہیں. تو سپلائی چین از ناٹ پارٹ آف دا اکانومی, سپلائی چین از این اکانومی. تو اگر ہم پاکستان میں سپلائی چین کو بھی امپروو کریں, اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیں اور فارمرز کو جو ہے ایکسس دیں مارکیٹ میں تاکہ وہ ٹائملی اپنی سیل کر سکتے ہیں. اور آپ کے خیال میں اس کی قیمت کو کیسے کم کیا جائے؟ اس لحاظ سے کیا چین کچھ مدد فراہم کر سکتا ہے؟ چائنا نے جس طرح اپنی 1.4 بلین پاپولیشن کو جس طرح کیٹر کیا ہے, یہ ایک لائیو ایگزامپل ہے. چائنا کے پاس اس وقت جو گرین ہے, گندم ہے, اس کی جو سٹوریج کیپیسٹی ہے وہ 650 ملین ٹن ہے, اور کوئی بھی یورپین ممالک یا امریکہ میں بھی اتنی کیپیسٹی نہیں. تو چائنا نے کیا کیا اور ہم چائنا سے کس طرح سیکھ سکتے ہیں؟ چائنا نے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو گندم ہے وہ ٹائملی وقت پہ اس کا پرچیز ہو جاتا ہے, اور دوسرا کسانوں کو جو ہے ان کی آمدنی جو ہے وہ مقررہ وقت پہ مل جاتی ہے. اس سے چائنا نے یہ بھی سٹوریج کیپیسٹی میں چیز رکھی ہے کہ کوالٹی مینٹین رکھی ہے. اس لیے اگر آپ دیکھیں کہ چائنا کی لوگوں کی لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے بہت زیادہ ہائی ہے. اور یہ اگر آپ پچھلے سال 9 اپریل کے اکانومسٹ میگزین میں دیکھیں تو پریزیڈنٹ شی جی پنگ نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی جو میں کوٹ کر رہا ہوں, The people's rice ball must be firmly held in their own hands all the time. اور یہ پریزیڈنٹ شی جی پنگ کی ایک بڑی اسٹریٹجک آئیڈیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو فوڈ سیکیورٹی جو ہے ہر وقت فراہم رکھیں. چین میں چاول ایک اہم غذا ہے اور گندم کا بھی بہت استعمال ہے. پھر چین نے اپنی ذخیرہ اندوزی اور خوراک کی حفاظت کیسے کی ہے؟ انہوں نے اس میں انٹرنیٹ اور بگ ڈیٹا استعمال کیا ہے. وہ ان کو امپاور کیا ہے. ہم بھی اپنے کسانوں کو ٹیکنالوجی کے تھرو ان کو امپاور کر سکتے ہیں, ان کو امپروو کر سکتے ہیں, ان کا ایکسیس ٹو دا مارکیٹ. پاکستانی چائنا سے کافی چیزیں سیکھ سکتے ہیں. اسٹوریج کیپیسٹی, چائنا کی سپلائی چین جو ہے وہ کافی ایفیشینٹ ہے, جس کی وجہ سے وہاں پر آج تک آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ کوئی ایسا کرائسس آیا ہو. چائنا نے اپنا سپلائی چین, اٹ از ویل مینجڈ, پروفیشنلی ڈریون, اینڈ از آل بیسڈ آن ٹیکنالوجی. تو اگر ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کریں, انٹرنیٹ آف تھنگس اور بگ ڈیٹا, تو ہمارے یہاں بھی کافی جو ہے ساؤنڈ مینجمنٹ سسٹم آ سکتا ہے, جس کی وجہ سے جو اشیاء کی قیمتیں ہیں وہ بجائے اوپر جانے کے وہ کم ہو جائیں گی. پاکستانی فروٹ کی سٹار پروڈکٹ کینو کی برآمدات کیسی ہیں؟ پیداوار اور معیار میں مسلسل بہتری کے ساتھ ساتھ مستقبل میں کینو کی برآمد کا کتنا امکان ہے اور برآمدات بڑھانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آئیے رپورٹ دیکھتے ہیں. پچھلے شوز میں ہم نے کینو لگانے کے بارے میں تکنیک متعارف کروائی. ایک حالیہ دورے میں ہمارے رپورٹر نے دیکھا کہ کینو کی پیداوار توقع سے کہیں کم ہے, اور یہ کہ پیداوار کی بڑھتی ہوئی لاگت نے کینو کی قیمت کو بھی بڑھا دیا ہے. کنو اسی مطلب خرید کرنے ہیں کہ زمینداراں کولوں باغ لے کے کنو خریدنے ہیں. کنو دی یعنی کہ فصل بہت گھٹ آ, مہنگائی بہت زیادہ ہے کنو دے بارے چ. کنو وہی کنو جڑا پچھلے 5 سالاں دے وچ 600 تو لا کے 800 روپے تے کر سکیا, ایتکی وہ کنو 1400 1200 1500 1600 تک جا رہا ہے. کینو کی قیمتوں میں اضافے کی ایک وجہ ڈی اے پی کھادوں کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں. مہنگائی دی وجہ یہی ہے کہ کھاد زیادہ ہے. کھاد دی یعنی کہ ڈی اے پی 8500 تو لا کے 9500 روپے تک 10,000 تک اسی خریدی. بلیک 3000 2600 یوریا کھاد جیڑی 1800 دی ہوندی سی. ڈیزل دا حساب دیکھ لو کی ڈیزل دا ریٹ کی جا رہا ہے اس ٹائم. زمیندار سچے ہے, زمیندار ہن اسی کی کر سکنے ہیں. ایک انٹرویو میں ماہرین بہترین اور سب سے زیادہ موزوں کھاد کے استعمال کی سفارش کرتے ہیں. دوستو ڈریگن فروٹ جو ہے وہ آرگینک خوراک کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے. یوریا کھاد یا ڈی اے پی وغیرہ اس پہ اتنا اچھا رزلٹ نہیں دیتے, اکثر اس پہ جو ہے وہ پودے ضائع ہونے کا چانس بھی ہوتا ہے. تو ڈریگن فروٹ کو جو پسندیدہ جو اس کی خوراک ہے, اس کو ہم ورمی کمپوسٹ ڈالتے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم خود یہ ورمی کمپوسٹ تیار بھی کرتے ہیں, اور یہ ورمی کمپوسٹ ہم دوستوں کو انوائٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ آپ خود بھی تیار کر سکتے ہیں. یہ بائیو فرٹیلائزر بہت سی لاگت بچاتا ہے اور پیداوار کا عمل بہت آسان ہے اور خام مال آسانی سے دستیاب ہے.
कारकुन मिट्टी में खाद तैयार कर सकते हैं। और इन्हीं से ये खुराक जो हम तैयार करते हैं, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, जिसको वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। इसी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को आप खुद भी अपने घर में तैयार कर सकते हैं। इन केंचुओं की खुराक जो है वो किचन वेस्ट के अलावा ये आपके घर में जो वेस्ट है, ये देखें, ये गत्ता है जो कि अक्सर हमारे घरों में हमें मिल जाता है, इसको हम जो है वो इस तरीके से लगा देते हैं। तो ये इसके लिए आपको कोई ज़्यादा मेहनत और तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सब्जियों के गले सड़े पत्ते, सब्जियों की वेस्ट, किचन की वेस्ट और इस तरह के ये कागज़ जो हैं, इनकी क्लिपिंग काट के आप अपने लिए, अपने ड्रैगन फ्रूट के पौधों के लिए खुद से भी खाद बना सकते हैं। बल्कि ये दूसरे भी तमाम पौधों के लिए और फसलों के लिए ये खाद बेहतरीन खाद के तौर पे मानी जाती है। इसको ये इस तरह हमने डाल दिया है। अब ये इसको खा के बेहतरीन खाद में चंद दिन के अंदर चेंज कर देंगे और इस खाद को हम पौधों में जब डालते हैं तो हमें उसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। दोस्तों, कटाई के दौरान किन्नू की दर्जाबंदी की जाती है। किन्नू के फल जो कीड़ों से पाक या बीमारी से पाक और दरख्तों पर लगे होते हैं वो ग्रेड ए में आते हैं। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਛਾਂਟ ਛੂਣ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਗਲ ਦਾ ਬੇਕਾਰ ਦਾਣਾ ਨਾ ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ 1 ਨੰਬਰ ਆ ਏ ਗ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 1 ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛਾਂਟ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਥਰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਾਰਗਲ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਰੇਟ ਆ, ਹਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗਾ ਰੇਟ ਆ। ਕੋਈ 700 ਦੀ 750 ਦੀ ਪੇਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 600 ਦੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਆਪ ਖੁਦ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰੀਦੇ ਸੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਉਹਦੀ। ग्रेड ए कीनू को आमतौर पर फफूंदी कुछ दवाओं के साथ वैक्स तैयार करने से पहले धोया जाता है ताकि गलने सड़ने के अमल को सुस्त किया जा सके और ताजगी को बढ़ाया जा सके। आखिर में कीनू को बरामदात के लिए उनके साइज के मुताबिक दर्जाबंदी और पैक किया जाता है। शुरू से अर्ज़ किया कि हमारे पास तकरीबन हम 15 से 16%, इवन के किसी साल में हम 18% को टच कर पाएँ जो हमारा फ्रेश फ्रूट एक्सपोर्ट हो जाता है। उसके बाद तकरीबन 50 से 60% वो फ्रूट है जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट के अंदर आता है, जो ज़्यादातर टेबल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, जो एज ए फ्रेश फ्रूट हम खाते हैं उसको। सिर्फ 5 से 8% फ्रूट है जो हमारा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में जाता है, जिसमें कंसनट्रेट बन के एक्सपोर्ट हम करते हैं। बाकी जो है हमारा डोमेस्टिक यूज़ में आ जाता है। अब ज़रूरत ये है कि हमारे जो इसमें लॉसेज हो रहे हैं उनको हम कंट्रोल करें, और प्लस ये है कि जो हमारी सी या डी ग्रेड फ्रूट है उसको हम कन्वर्ट करें प्रोडक्ट्स में। 12 दर्जन एक ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨੂ, 150 ਦਾਣਾ 10 ਦਰਜਨ, 100 ਦਾਣਾ, 90 ਦਾਣਾ, 80 ਦਾਣਾ, 72 ਦਾਣਾ, 60 ਦਾਣਾ, 56, 64, 48 ਐਸ ਮੋਟੇ ਥੋਕ ਹੈ ਵਾਲੇ। ਜਿਹੜਾ 12 ਦਰਜਨ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। 12 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ? 12 ਦਰਜਨ ਉਹਦੇ ਪੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਦਰਜਨ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਿਣ ਕੇ 120 ਦਾਣੇ। ग्रेड ए कीनू की मुसाबकत को बढ़ाने और बैनुल-अक़वामी मार्केट में ज्यादा मुनाफा हासिल करने के लिए पाकिस्तानी फल के ताजरों ने पैकेजिंग को बेहतर बनाने और पाकिस्तानी कीनू को ब्रांड करने का मंसूबा बनाया है। फैक्ट्री ਦੇ ਜਦੋਂ ਪਾਲਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿੰਨੂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਈਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਮਸ਼ੀਨ ਕੱਢਦੀ ਸਾਈਜ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ 48, 56, 64, ਆਪਣਾ 72, 80, 90, 100 ਦਾਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਕੱਢਣੀਆਂ। ब्रांड के नेम से अगर हम पाकिस्तान के किन्नू को एक्सपोर्ट करें तो मार्केट के अंदर एक बड़ी अच्छी पेनिट्रेशन और अच्छा रेवेन्यू मिल सकता है। फिर उसके बाद ये है कि हमारी जो पैकिंग क्वालिटी है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, ताकि जो हम इंटरनेशनल पैकर्स हैं जिनके साथ हम कम्पीट कर रहे होते हैं उनको हम इस तरीके से अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर सकें कि वो अट्रैक्टिव हो। फिर उसके बाद ये है कि जो हमारा फ्रूट है, सबसे पहले जो क्वालिटी हम दे रहे हैं वो क्वालिटी एक कंसिस्टेंट होनी चाहिए, कि जो क्वालिटी एक दफ़ा गई है नेक्स्ट टाइम भी वही क्वालिटी हम उसको दे पाएँ, ताकि एक जब ब्रांड आपने एस्टेब्लिश कर लिया तो फिर ब्रांड की जो एक फेम है वो हम उसको कंटिन्यू कर सकें। अगरचे ग्रेड ए किन्नू किसानों और ताजरों को मुनाफा देते हैं, बी ग्रेड या सी ग्रेड किन्नू ज़ाया हो रहे हैं। क्योंकि जो लॉस है, अगर एक एस्टीमेट सर्वे के मुताबिक ऑलमोस्ट 1/3 हमारी खराब जो है वो ज़ाया हो जाती है। इसकी पहली वजह किसानों की तरफ से फल चुनने का नामुनासिब तरीका है, जिसकी वजह से किन्नू की सतह पर खराशें आती हैं। जो पिकिंग का तरीका है जी, अगर उसको प्रॉपर देखा जाए तो उस बंदे को यहाँ से फ्रूट को पकड़ना है एक हाथ से, दूसरे हाथ से उसने यहाँ से कैंची को इस्तेमाल करना है उसके शोल्डर के साथ रख के, और फ्रूट को आराम से यहाँ से उठा के उसने अपने कलेक्शन बैग के अंदर डालना है। अगर ये एहतियात वो नहीं करता और इस तरह उसको तोड़ लेता है, स्ट्रक करता है, प्लग करता है, तो प्लग करने से ये होगा कि इसकी स्किन यहाँ से फट जाएगी और वो फ्रूट पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज में चला जाएगा, वो फ्रूट एक्सपोर्ट के काबिल नहीं रहेगा। इस मसले को हल करने के लिए हुकूमत ने अब किसानों को तरबियत देना शुरू की है, ताकि चुनाई के दौरान नुकसानात को कम करने के लिए
मुनासिब तरीके से कीनू की कटाई कैसे की जाए। गवर्नमेंट ने एक एक्सटेंशन डिपार्टमेंट बनाया है जिसका काम ये है कि जो हमारे से टेक्नोलॉजी डेवलप होगी है उसको लेके फार्मर तक लेके जाना। वो पूरा साल अपने प्रोग्राम शेड्यूल कर रहे होते हैं और CRI का, हमारे इस इंस्टीट्यूट का एक्सपर्ट वहाँ जाता है, नर्सरी की भी ट्रेनिंग दे रहा होता है, इवन के प्लांट पर इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की भी ट्रेनिंग दे रहा होता है, हार्वेस्टिंग की भी ट्रेनिंग दे रहा होता है। तो हमारा पूरा लेन रहता है पूरा साल उनके साथ, और हम कोशिश करते हैं कि जितने भी फार्मर के प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के जितने भी सेगमेंट्स हैं उनको हम प्रॉपर तरीके से ट्रेन कर सकें ताकि लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग हो और जितने भी लॉसेज और इस तरह की मैल प्रैक्टिसेस हो रही हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। कोल्ड स्टोरेज टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ ही कीनू लंबी शेल्फ लाइफ हासिल कर सकते हैं। फल और सब्जियों की प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज की तरक्की के साथ ग्रेड B और C कीनू ने भी वसी पैमाने पर अपना इस्तेमाल हासिल कर लिया है। 80 तक ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो हम सिट्रस के यूज से प्रोड्यूस कर सकते हैं। परफ्यूम इंडस्ट्री में, कन्फेक्शनिंग इंडस्ट्री में वो सारा वही ऑयल यूज हो रहा है ऑरेंज का। फिर उसके बाद हम इसमें से कंसनट्रेट, जिस तरह मैंने बताया, प्राइमरी प्रोडक्ट बना रहे हैं। नाजरीन, पाकिस्तान की मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल की तलब बढ़ती रही है और हुकूमत की तरफ से भी साजगार पॉलिसियां भी सामने आ रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चीनी कंपनियां पाकिस्तान की EV इंडस्ट्री में सरमायाकारी करने जा रही हैं, जबकि कुछ मकामी कंपनियों ने भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मसनूआत तैयार करना शुरू कर दी हैं। कवी उम्मीद है कि पाकिस्तान में EV इंडस्ट्री मुस्तकबिल करीब में तेज़ी से तरक्की के मरहले में दाखिल हो जाएगी। आइए एक नज़र डालते हैं। पाकिस्तान ने हालिया बरसों में सालाना 2.5 मिलियन से ज़ायद मोटरसाइकिलें तैयार की हैं, जिनमें से ज़्यादातर पुराने मॉडल्स हैं। चीन की नई तवानाई की अहम कामयाबियों को शेयर करने के लिए चीनी मोटरसाइकिल इंटरप्राइजेस के नुमाइंदों में से एक जियालिंग इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड चाइना ने नवंबर 2022 में रवायती ईंधन की बजाय नई तवानाई की खालिस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें मुतारफ कराने के लिए पाकिस्तान में एक शाख कायम की है। इस वक्त कुछ लोग रवायती मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हैं। हम सड़क पर देख सकते हैं कि होंडा 70 की तरह ये सिर्फ फ्यूल इंजन का इस्तेमाल करती है। इसके अलावा जब EV इंजन इस्तेमाल किया जाता है तो कुछ इस साइज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोई बरकी हिफाजती कंट्रोल सिस्टम नहीं है। ये बहुत खतरनाक है। जब आप इस मोटरसाइकिल को इस्तेमाल करते हैं तो इंजन का दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा होता है, बैटरी में आग लग सकती है। अब जब हम CPEC के तहत पाकिस्तान आ रहे हैं तो हमें इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में एक मजबूत टेक्नोलॉजी और महफूज निज़ाम लाना होगा। एक खालिस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की कीमत रवायती पेट्रोल मोटरसाइकिल के मुकाबले में ज़्यादा हो सकती है, ताहम तवील मुद्दत में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें पेट्रोल मोटरसाइकिलों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ईंधन की लागत को बचा सकती हैं। चीन और पाकिस्तान के दरमियान तिजारती और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए जून 2022 को चाइना जियालिंग ग्रुप ने पाकिस्तान गुमन ग्रुप के साथ ताउन के मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसके तहत पाकिस्तान में नई तवानाई की मोटरसाइकिलों की प्रोडक्शन लाइन कायम की जाएगी। पुर्जों और दीगर हिस्सों की तैयारी को बतदरीज मुकामी बनाया जाएगा और जियालिंग ब्रांड के तहत पाकिस्तानी मार्केट में मसनूआत फ़रोख्त की जाएंगी। हम पाकिस्तान में एक फैक्ट्री कायम करने का इरादा रखते हैं। हम अपना हेड ऑफिस, चीफ इंजीनियर्स, टेक्नोलॉजी और इंतहाई खास और पेशावराना मशीनें भी पाकिस्तान मुंतकिल करेंगे। हम अपने अमले के कारकुनों को तरबियत देने के लिए कुछ चीनी इंजीनियर्स का तवील अरसे तक पाकिस्तान में आने का इंतज़ाम कर सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में बिजली की किल्लत, चार्जिंग की नामुकम्मल सहूलियात और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के पुर्जों की नाकाफी पैदावार मुकामी प्लांट की तामीर में जियालिंग को दरपेश बड़े चैलेंजेस हैं। हम एक प्रोडक्शन लाइन कायम करने का इरादा रखते हैं जिसमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए मुस्तहकम सनती बिजली की फरहमी को यकीनी बनाने के लिए मुकामी बिजली के शोबे की ज़रूरत होती है। मज़कूरा बाला रुकावटों के बावजूद पाकिस्तान की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2020-2025 ने पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों में सरमायाकारी करने की मनसूबाबंदी करने वाले कारोबारी इदारों के लिए ज़बरदस्त फ़वायद पेश किए हैं, जिनमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खसूसी हिस्सों पर दरामदी ड्यूटी का 1%, 0 CKD सेल्स टैक्स और मुकामी तौर पर तैयारशुदा और मुकामी तौर पर फरोख्त होने वाली गाड़ियों पर 1% सेल्स टैक्स शामिल है। इन इक़दामात ने गाड़ियों की पैदावारी लागत को बहुत कम कर दिया है। नई तवानाई के ज़राए जैसे खालिस बिजली,
हाइड्रोजन तवानाई और दीगर हाईटेक ज़राए की मंडी में तलब आलमी सतह पर एक रुझान होगी। मैं पाकिस्तान में इम्कानात के बारे में बहुत पुरुमीद हूँ। हमारी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल देखने में खूबसूरत है, शफाफ तवानाई इस्तेमाल करती है और ड्राइव करने में बहुत आसान है। जब तक हुकूमत खातिर खा तवज्जो देगी और मुवाफिक पॉलिसियां बनाएगी, मुस्तकबिल में पाकिस्तान की सड़कों पर बहुत सी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें मौजूद रहेंगी। ईवी सेक्टर में चीन की तरक्की से तजर्बा हासिल करते हुए मुकामी कंपनियां भी कोशिशें कर रही हैं। जोल्टा इलेक्ट्रिक पाकिस्तान की पहली ईवी कंपनी है और ये ऑटो इंडस्ट्री को बरकी कुव्वत की फराहमी से ज़रूरियात पूरा करने पर तवज्जो मरकूज कर रही है। कंपनी ने जनवरी 2021 में रजिस्टर्ड ईवी कंपनी का लाइसेंस हासिल किया, सैंपल ऑर्डरिंग शुरू की गई और मार्च 2021 में एक फैक्ट्री कायम की। इसके बाद से गाड़ियों की तलब में इजाफा हुआ और 1.5 साल के अंदर अंदर 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स फरोख्त हुई। जोल्टा इलेक्ट्रिक का आइडिया कंसीव हुआ व्हेन आई वाज बैक इन 2007 and 8 इन चाइना। तो चाइनीज़ उस वक्त 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स की तैयारी कर रहे थे। तो बीजिंग ओलंपिक्स में उन्होंने ये फ़ैसला किया कि जितने बड़े शहर हैं जैसे बीजिंग है, शेंजन है, शंघाई है, वहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक टैक्सीज चलेंगी। सो आप इमेजिन करें जब दुनिया अभी पूरी तरह इंजन बेस्ड, आइस बेस्ड, कंबक्शन बेस्ड कार्स को फोकस कर रही थी, तो उस वक्त चाइना जो है वो इलेक्ट्रिक कार्स को एज अ टैक्सी के तौर पर इंट्रोड्यूस करवा रहा था। तो वहाँ से हुआ कि यार दिस इज़ समथिंग दैट गोना बी बिग इन फ्यूचर। लेकिन फिर बात जो है वो आई गई हो गई एंड देन आई मूव बैक टू पाकिस्तान, देन आई स्टार्टेड माय सॉफ्टवेयर बिजनेस। फिर ये 2014 में टेस्ला जो है वो बहुत हाईलाइट हुआ एंड बिकेम अ बिग सक्सेस। सो इस आइडिया को फर्दर जो है वो रीआइट्रेशन मिली एंड देन वी जम्प्ड इनटू 2018 एंड 19 जब ये स्मोक का पाकिस्तान में लाहौर में एक बहुत मेजर प्रॉब्लम क्लाइमेट का आ गया और पोल्यूशन का आ गया। सो उस टाइम पे जो एक्स गवर्नमेंट थी दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस थिंग। तो हम ऑलरेडी इसकी R&D पे काम कर रहे थे। 2019 में हमने इसकी R&D की और इसके जो पार्ट्स थे। पाकिस्तान में पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी का दर्जा मिलना हमेशा चैलेंजिंग रहा है। इसके बाद 2018 और 2019 में जब उन्होंने इस तसव्वुर को अपनाते हुए इस पर काम करना शुरू किया तो पाकिस्तान में कोई ईवी पॉलिसी नहीं थी। रास्ते में बहुत सी रुकावटें पेश आ रही थीं क्योंकि सड़कों पर पहले से चलने वाली मोटरसाइकिलें कदरे मुस्तहकम अंदाज से रवां थीं। लोग बरकी मोटरसाइकिलों के जरिए दी जाने वाली माइलेज के बारे में शुकूक व शुबहात का इजहार कर रहे थे और फास्ट चार्जिंग का मुतालबा कर रहे थे। लिहाजा उन्होंने सार्फिन को मुख्तलिफ ऑप्शंस देने के लिए मुख्तलिफ मॉडल्स तैयार किए। सो मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूँ कि जब हमें ये लॉन्च की तो रिस्पांस बड़ा ज़बरदस्त था बिकॉज़ दिस इज़ समथिंग न्यू और हमने एक नया ट्रेंड जो है वो लोगों को दिया, जिसकी वजह से बहुत सा एक्सपर्ट पाकिस्तानी जो है, क्योंकि वो इस चीज़ से अवेयर था कि दुनिया में जो है अब ईवीज़ का दौर होना है, तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों को यहाँ पर उसका बिज़नेस करा के दिया। वो हमारे डीलर्स बने, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स बने और एक नया बिज़नेस जनरेट होना शुरू हुआ पाकिस्तान में। लेकिन डेफिनेटली everything comes with a price, so we have to put a lot of investment in terms of awareing the people। awareness के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा एफर्ट की, पूरे पाकिस्तान में कैंपेनिंग की। वसी तनाज़र में आलमी मंडियां बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिफिकेशन की जानब तेज़ी से जा रही हैं। वसी पैमाने पर ईवी अपनाने वाली दुनिया तेज़ी से यहाँ करीब पहुँच चुकी है। कोई ममालिक जो हैं वो कह रहे हैं 2030 तक 60% इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगी, कोई कह रहे हैं 2040 तक 100% होंगी। सो सेम वे में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में भी 2040 तक वी विल बी क्रॉसिंग एटलीस्ट 60-70% जो हमारी जितनी भी कम्यूट होगी वो इलेक्ट्रिक होगी इंशाल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस देखने का बहुत शुक्रिया। अगली दफ़ा मिलेंगे। खुदा हाफिज़।